Hello everyone, this is Muskan Gaur and you're watching to Student Adda. I am your biology teacher and I'll be teaching you life processes today. क्या आप मुझे बता सकते हैं how do you differentiate between a living thing and a non-living thing? I know that I am a human and I am a living thing, but how do I tell this? मैं कैसे खुद को एक living thing बोल सकती हूँ? मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि I breathe, I eat food, I respire, I take in oxygen and I exhale carbon dioxide. What if we talk about plants? हम plants को कैसे बताते हैं कि वो living things हैं? क्योंकि we see them grow. Plants बढ़ते हैं, they grow in height, they grow in the girth. This is how we can tell they are living. Now, let us study about the features that differentiate living things from non-living things. अब हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. सो लेट्स मूव ऑन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. फर्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. सारे लिविंग थिंग्स सेल्स से बने हैं. यू नो व्हाट इज सेल इज? सेल इज द मोस्ट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वॉट एवर वी आर, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है. सेकेंड इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका क्या मतलब है? जो सेल्स है, आइदर इफ इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सिर्फ एक सेल है. बट व्हेन अ लॉट ऑफ सेल्स कंबाइन, दे फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स. Third one is it responds to the environment. We respond to the environment. Dogs respond to the environment. We know that. Just in case, for suppose, agar someone tries to hit me with a bat, I will respond to it. This shows that I am a living thing. Fourth one is grow and develop. All living things, they grow. मतलब हम बढ़ते हैं. When a child is born, वो इतना छोटा होता है, but as soon as it ages, वो बड़ा होता रहता है. It develops. The fifth one is obtain and use energy. How are we growing? How are we developing? We need something. We need some energy to move. We need some energy to talk. Without energy, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Last is we reproduce. How is life maintaining on earth? हम कैसे बढ़ रहे हैं? We reproduce. अगर we stop reproducing, अगर reproduction process खत्म हो जाए, there would be no life on earth. जितने डॉग्स हैं उतने ही डॉग्स रहेंगे, जितने ह्यूमंस हैं उतने ही रहेंगे, आगे तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी लाइफ है इस दुनिया में वो कैसे चल रही है? हाउ डू वी मूव? हम कैसे चलते हैं, हम कैसे खाना खाते हैं, हाउ आवर बॉडी इज वर्किंग. We need something, we need some processes. The processes occur when the body is not moving also. For example, जब हम सोते हैं हमारी बॉडी कुछ नहीं कर रही होती है, but we still respire. हम फिर भी सांस लेते हैं, हम फिर भी खाना नहीं खाते हैं, but our mind is still working. So this is what life processes means. जो processes हमें एक living life maintain करने में help करते हैं, that are called life processes. In unicellular organisms, these processes are carried out by a single cell, whereas in a multicellular organism, these are carried out by multiple cells. For suppose एक unicellular organism है, उसके पास सिर्फ एक सेल है, तो life processes भी तो एक ही सेल में होंगे. How would it happen in a lot of cells? वो possible नहीं है. For now, in multicellular organisms like us, our body is made up of millions and millions of cells, right? तो हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो सारे सेल्स में यूज होंगे. उसमें सिर्फ एक सेल काम नहीं करेगा, उसमें बॉडी के सारे सेल्स यूज करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस. द 4 टाइप्स विच वी हैव टू स्टडी इन योर सिलेबस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. This is all you have to study for now. ये 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. ये हम सबको पता है, इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी. अगर हमें कुछ भी काम करना है तो वी नीड एनर्जी एंड दैट इज वाई वी इनटेक फूड.
जो फूड हम इनटेक करते हैं वो बेसिकली कार्बन बेस्ड होता है. कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस अर्थ. द सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. अब दूसरा प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन. ये भी आप लोगों को पता होगा कि इट इज सिंपली द इनहेलेशन ऑफ गैसेस, आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. Respiration is the process of use of oxygen for breakdown of food. जो हमने फूड इनटेक किया है, अब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे करेगी? इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन. अगर कुछ भी बड़ी चीज़ है, अगर हमें उसको खाना है तो फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. सो दिस इज वाई रेस्पिरेशन अकर्स. जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी को मदद करती है फूड को छोटा करने में, ब्रेक डाउन करने में. द अदर प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन. अब फूड ब्रेक डाउन हो गया है, ऑक्सीजन का यूज हो गया है. अब वी इनटेक फूड फ्रॉम आवर माउथ, वी इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम आवर नोज. अब अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी बॉडी में तो हमारा खाना सिर्फ हमारे माउथ में रह जाएगा और जो जितनी भी एयर है, जितनी भी ऑक्सीजन है, वो सिर्फ हमारे नाक तक रह जाएगी. बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन लाइफ. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर any organism to live. So what happens is, जितना भी breakdown हुआ है, it has to be transferred into all parts of the body. The definition says carrying food and oxygen from one part of body to another. The last process we have to study is excretion. इतने सारे processes हमारे body में होते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे ही जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हों. सम प्रोडक्ट्स आर देयर जो यूज़फुल नहीं होते एंड कैन इवन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी. वो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. वी विल स्टडी इन डिटेल about all these processes in the next coming video.